Hello friends, I am Sunil Vaisal, your teacher, BCom second year, third semester, subject corporate accounting. In that, the topic issue of shares. I hope you have made a separate notebook for this. This is the third lecture. In last lecture, we were talking about some basic concept. What is premium, discount, application, allotment, first call, final call, forfeiture and reissue. I already told you in this chapter, student has to pass journal entry, no any ledger, student has to pass journal entry. Okay. So, in today's lecture, what we will do? We will try to understand the journal entry. Okay. Start. So, before going towards the journal entry, we must know some concept, and that I already discussed with you. Share can be issued at par, shares can be issued at premium and shares can be issued at discount. 10 rupees face value share issued at rupees 10, this is at par. Face value of share having 10 rupees sold at 12 rupees, it means that share issued at premium and shares face value having rupees 10 issued at rupees 9, this is the shares issued at discount. Okay, you should know this. And I told you the amount of shares, suppose the face value of share is rupees 10, this company does not demand the entire 10 rupees at a one amount, in one amount. There are some installment, and what is this installment? Application, allotment, first call and final call. Clear? Done. Okay. So what क्या होता है भाई देखो, when company offer shares to the public, public subscribe. Those who want to invest with that particular company, वो क्या करते हैं, वो कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं. तो परचेस करते हैं तो वो क्या होता है, the person who want to be a shareholder of that company, he must fill the application form and then remit or send some money with that application. तो आपका फर्स्ट एंट्री बनेगा for application money received. मैं यहां पे लिख देता हूं application money received, थोड़ा इधर जाएगा, एडजस्ट कर लो. ओके, फॉर application money received. नाउ देखो अगेन क्वेश्चन, अकाउंटिंग पॉइंट व्यू से वेयर वी आर passing journal entry, we are passing journal entry in the books of Sunil Vaisal Company Limited. So we should think in that sense. Okay, so in the books of company, so as I told you, company received application money. Those people who want to be a shareholder of that company, they must send some money with the application. Suppose rupees 2 send with the application. Suppose suppose my friend Imran Sheikh purchase 100 shares of any particular company having a face value of rupees 10, and suppose company say send rupees 2 with the application, and Imran subscribe for 100 shares, so Imran has to send how much rupees? 200 rupees. Clear? Okay. So application money received in the books of company Sunil Vaisal Company Limited. कंपनी को पैसा मिल रहा है, कैश कम, क्या हो रहा है, कैश आ रहा है. कैश इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? यस, कैश इज अ रियल अकाउंट. सो व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? गोल्डन रूल पता है हम सब लोगों को, क्या है? कैश अकाउंट रियल अकाउंट है. तो रियल अकाउंट में क्या होता है, जो आता है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. तो कैश आ रहा है. अब यहाँ पे मैंने पहले लेक्चर में आपको बोला था, फर्स्ट लेक्चर में, कि कंपनी ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट. शेयर्स बोले थे क्या, गेहूं बाजरा नहीं है कि बैठ गए रास्ते पे, बाजरे ले लो, गेहूं ले लो, वांदी ले लो, टमाटे ले लो. हाँ, तो कैश में नहीं होता है, बैंक में होता है. तो बैंक में पैसा आता है तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट. कंपनी को पैसा मिला, रियल अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट. किसने दिया, किसने दिया? तो जो लोगों ने शेयर्स खरीदे थे उन लोगों ने दिया. अभी पांडुरंग ने खरीदा, तुकाराम ने खरीदा, भीम भाऊ ने खरीदा, रामाताता ने खरीदा, कचरू पाटील ने खरीदा, तुका पाटील ने खरीदा, वस्तीवरल्या आप्पा ने खरीदलं, खाल्यातल्या नाना ने खरीदलं. तो ऐसे नाम के लोग नहीं लिख सकते. हाँ,
इंडिविजुअल का नाम लिखेंगे तो रात हो जाएगी, अकाउंटेंट मर जाएगा बेचारा। हाँ, तो उसको एक ग्रुप बनाते हैं। और क्या ग्रुप है वो? इक्विटी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। बात समझ आ रहा है? जो लोग भी पैसे भेज रहे हैं इंडिविजुअल नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं, थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं, लैक्स ऑफ लोग हैं, तो उनके नाम नहीं लिख सकते, उनको एक ग्रुप बनाएंगे। क्या? तो क्या है वो ग्रुप? शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? इट इज अ पर्सनल अकाउंट। हाँ, पैसे आ रहे तो पर्सनल पैसे आते थे, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। अभी पैसे आए, किसने दिए? विच टाइप ऑफ अकाउंट? पर्सनल अकाउंट है। भाई पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। किसने दिया? जो एप्लीकेशन के साथ पैसे भेजे थे उन्होंने दिया, तो उनको क्या ग्रुप बनाया? शेयर एप्लीकेशन। तो क्रेडिट द गिवर। ओके, नरेशन लिखेंगे सिंपल भाषा में, मैं यहां पे नहीं लिखता जगह की वजह से। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंट्री। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। दुनिया में किधर भी जाओ यही एंट्री बनेगी, किधर भी जाओ यही एंट्री बनेगी। जब पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट, कौन दे रहा है? शेयर एप्लीकेशन। राइट, क्लियर? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एंट्री। अभी नेक्स्ट एंट्री होती है फॉर ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी। अभी बैंक में जो पैसा जमा हो रहा है, बैंक में जो पैसा जमा हो रहा है, बैंक में ही पढ़ने देंगे क्या? नहीं, हम वो बैंक में नहीं रखते, बैंक से उठाते हैं और ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? शेयर्स कैपिटल अकाउंट को। तो यहाँ पे जिसको क्रेडिट किया है, तो यहाँ पे हमें उसको क्या करना है? डेबिट करना है। सिंपल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ये भी पर्सनल अकाउंट है, ये भी पर्सनल अकाउंट है। बात समझ रहे हो? कैपिटल अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। ओके, सो क्रेडिट द गिवर, इसको यहाँ पे एक बार डेबिट किया, एक बार क्रेडिट किया। बात समझ में आ गई? क्लियर। नाउ थर्ड एंट्री एप्लीकेशन का होगा। एप्लीकेशन के साथ पैसे मिले, एप्लीकेशन के पैसे शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दे। अभी ये जो हम एंट्री बना रहे हैं ना बच्चों, मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स, ये सिंपल वाला केस है, सिंपल वाला केस है। एडवांस केस हम बाद में लेंगे कि यहाँ पे क्या गड़बड़ होती है, तो मैं आपको आधे बोलूँगा। पहले सिंपल वाला सीखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या होता है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट होता है। क्या अलॉटमेंट होता है? जिन लोगों ने शेयर्स के साथ पैसे भरे उनको अभी क्या करना है? हमें शेयर अलॉट करना है। तो कंपनी क्या करती है? अलॉटमेंट के साथ भी कुछ पैसे बोलते हैं। पहले 2 रुपये भरे थे, आप बोलती है 3 रुपये भरो आगे के। सपोज 10 रुपये का शेयर है, पहले 2 भरे थे, अब क्या बोलते हैं? 3 रुपये भेजो अलॉटमेंट के साथ। सो अलॉटमेंट की एंट्री बनती है क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंट्री फॉर व्हाट? फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। मैं ऊपर लिखना भूल गया, लेकिन काय की एंट्री है? शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन सपोज 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 ईच फॉर एग्जाम्पल। ओके, ड्यू की एंट्री है। कौन सी एंट्री है? ड्यू की। फॉर शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। लोगों को बोला कि ठीक है, आपने एप्लीकेशन के साथ पैसे भेजे, हमने आपको शेयर्स अभी, ठीक है, आपका एप्लीकेशन क्या हुआ? एक्सेप्ट हुआ। अभी अलॉटमेंट के पैसे भेजो। अलॉटमेंट के पैसे क्या एंट्री होंगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी लोग पैसे भेजेंगे, भेजेंगे कि नहीं? भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? लोगों को शेयर्स चाहिए, तो पैसे भेजेंगे, कंपनी को अगेन पैसा मिलेगा। इफ अगेन मनी रिसीव्ड, व्हाट विल बी द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट। Who is sending this money? Allotment. So this is also a personal account. तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बात समझ में आ रहा है? ओके, अलॉटमेंट के मनी आ गए। अभी कुछ दिन हो गए, कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी, फिर कंपनी ने बोला कि पहले आपने 2 रुपये दिए एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ 3 रुपये दे दिए, अभी फर्स्ट कॉल के साथ
आप क्या करो, अगेन 3 रुपए दे दो, 10 रुपए का शेयर है फॉर एग्जाम्पल, मैं लिख देता यहाँ पे, सपोज 10 रुपए की फेस वैल्यू है एट पार, 10 रुपए को बेच रहे हैं ऐसा हम कंसिडर करेंगे। सो पहले अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ 2 रुपए आए, अलॉटमेंट के साथ 3 रुपए, अभी फर्स्ट कॉल के साथ अगेन 3 रुपए बुला रहे हैं, तो फिर एंट्री बनेगी शेयर, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, यहाँ पे भी आपको लिखना है फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अभी ये आगे की एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, क्या एंट्री बनेगी बच्चों, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, उनसे पैसे बुला रहे हैं ना, ओके, तो फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, किस लिए पैसे बुला रहे हैं, क्यों पैसे बुला रहे हैं, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन सपोज 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 ईच, कितने का है अलॉटमेंट, सो 3 रुपीज का, बात समझ रहे हो। सपोज हम यहाँ पे करेंगे कि 100 शेयर्स है, ओके, तो नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। अलॉटमेंट के पैसे ड्यू किए, लोगों को बोला भाई अलॉटमेंट के पैसे भेज दो, लोगों ने पैसे क्या दिए, भेज दिए, पैसे मिले। फॉर अलॉटमेंट फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, पैसा आएगा, सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट, कौन दिया, फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, राइट। नरेशन लिखेंगे बड़े आराम से, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, दैट्स इट, ओके, क्लियर। नेक्स्ट एज लाइक सिंपल सेम ऐसे ही एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू, क्या एंट्री बनेगी, फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, कितने का बचेगा अभी, 3 और 3 6 7 8, कितने बचे, 2 रुपए, हो गया हमारा 10 रुपए का अमाउंट कंप्लीट, राइट। सो क्या लिखेंगे नरेशन, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, ओके, पैसे मिलेंगे, सेम एंट्री होगी, यहां पे करता हूं मैं, पैसे मिलेंगे हमें फाइनल कॉल के, तो क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिलता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, पैसा जाता है तो क्रेडिट करते हैं, सुनबाई अकाउंट डेबिट टू मुलगी बाई अकाउंट क्रेडिट, ओके, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, और नरेशन लिखेंगे बड़े आराम से, बीइंग फाइनल कॉल मनी, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ओके। चलो बच्चों हिंट्री पढ़े, व्हाट वी स्टडीड हाउ टू पास जर्नल एंट्री for issue of shares. In that we studied first if shares issued at par. This is a very simple case. As I told you in the last lecture, there is a possibility for over subscription. There is a possibility of over subscription. मैंने बोला था आपको, बच्चा दिखने में अच्छा है, घर के माँ बाप अच्छे हैं, पैसे अच्छे हैं, तो फिर उसको ज़्यादा लड़के, मतलब हाँ ज़्यादा लड़कियों के बाप जो उसको बोलते हैं ना, लग्न करे सका, लग्न करे सका, लग्न करे सका, तो वैसा होता है, मतलब उसको ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं, ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं क्योंकि वो अच्छा है, दारू बीरू कुछ पीता नहीं है, ओके, तो ध्यान में रखो ये सब लोग बातें। वैसे ही सेम, सपोज देयर इज वन कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी, सुनील वाइसल कंपनी लिमिटेड, वेरी फेमस कंपनी, इतना उनके पास प्रॉफिट है, उनका प्रोडक्ट अच्छा है, सेटअप है, कस्टमर के प्रति लॉयलिटी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। अभी उन्होंने एक आईपीओ निकाला, एक आईपीओ उनका आया, उनके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का फॉर एग्जांपल एक आईपीओ आया। सुनील वाइसल कंपनी वांट टू लिमिटेड इशू
10,000 शेयर्स। कितना कर रहे हैं इशू? 10,000 शेयर्स। जैसे लोगों को पता चल गया अरे सुनील वाइसल का आईपीओ आ रहा, सुनील वाइसल की कंपनी शेयर बेचने करी, दौड़ चले। इतने लोग आए कि शेयर्स थे बेचने को 10,000 एंड पीपल अप्लाइड फॉर 15,000। क्या होगा देखो, आदमी अच्छा होता है तो ऐसा ही होता है। ओके, सो कंपनी वांट टू इशू 10,000 shares and people applied for 15,000 shares. Now tell me, it is possible to allot the shares to 15,000 shares? Not possible. आप जब 10,000 ही इशू कर रहे हैं, आपके पॉकेट में आपके पास इधर 10 रुपए ही है, तो 15 दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, कंपनी वांट टू इशू 10,000 shares and people applied for 15,000 shares. 15,000 लोग ने यहाँ 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। बात समझ रहे हो? ओके, सो ये जो केस होता है इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, अभी 10,000 ही हमको देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 10,000 ही है। तो बाकी के साथ क्या किया जाए? बाकी जो 5,000 शेयर्स के लिए डिमांड आई है उसके साथ क्या किया जाए, ये हम यहाँ पे सीखेंगे और इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, पहली एंट्री बनाएंगे। जब हमने लोगों को बोला कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो पैसे आएंगे फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मैं यहां पे थोड़ा लिख देता हूं, रिसीव्ड। पैसे मिलते हैं तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हो गया हमारा नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फॉर एग्जाम्पल कितने शेयर्स के पैसे मिले? 15,000 शेयर्स के पैसे मिले। लोग क्या, किसको क्या पता, चिमया कर रहा, गोमया कर रहा, नामदेव कर रहा, तुकाराम कर रहा, सकाराम कर रहा, इंदू भाई किया, जो है परिगा भाई ने किया, सकू भाई ने किया, साकर भाई ने किया, भीम भाई ने किया, सब लोगों ने अप्लाई किया, राइट। तो फिर क्या होगा? 15,000 आ गए, हमारे पास 10,000 है, तो हमको पता नहीं था, तो बैंक में पैसे आकर गिर गए। जब देखा तो 15,000 के लिए आया, तो अभी क्या करता है? तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और मेरे दोस्तों, इस सिचुएशन में कंपनी क्या करती है? कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट करती है, कुछ क्राइटेरिया लगाती है, डे वाइज का लगाते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फिर उस एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, फिलअप नहीं किया है ठीक से, तो एप्लीकेशन क्या होते हैं? कंपनी उसको रिजेक्ट करते हैं। तब भी कितना बचा है? 2,000। तो ये 2,000 जो होते हैं वो एडजस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो कैसे करते हैं हम आगे सीखेंगे, पहले हम एंट्री सीखेंगे। तो अभी ये पैसा आ गया, अब इसको क्या करना है? हमें ट्रांसफर करना है। क्या ट्रांसफर करना है? लिखता हूं यहां पे, एंट्री बनेगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। पहले इसको डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कहां पे करते हैं? टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 10,000 के साथ, 10,000 के हिसाब से जो शेयर से के पैसे है एप्लीकेशन के, सपोज 2 रुपए बुलाए हैं एप्लीकेशन के साथ, ओके तो हमारे पास कितने आए हैं? 30,000। बात समझ रहे हो मेरी? अगर 15,000 लोगों ने अप्लाई किया, 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ, एप्लीकेशन के साथ 2 रुपए बुलाए थे, मतलब कितना पैसा आया? 30,000 आया। तो 30,000 में से कैपिटल को कितना जाएगा? सिर्फ 20,000, 10,000 इंटू 2, ओके। बाकी पैसा क्या करेंगे? टू बैंक। बैंक मतलब व्हाट? रिटर्न। पैसा आया तो बैंक अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। पैसा आया तो बैंक अकाउंट क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट होता है। पैसा जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो उसमें से जो लोगों को हमने शेयर्स नहीं दिए उनको क्या करेंगे हम? उनको बोलेंगे आपका पैसा भाई वापस लेके जाओ, हमारे पास शेयर्स नहीं है। और तीसरा, टू शेयर अलॉटमेंट। ये जो पैसे ज्यादा भरे हैं, समझो इमरान भाई ने 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मतलब इमरान भाई ने 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन के साथ 400 रुपए भेजे, राइट। मैंने इमरान को सिर्फ कितने शेयर दिए? 100 ही दिए, तो मैं एप्लीकेशन में सिर्फ 200 एडजस्ट करूंगा, और जो इमरान ने ज़्यादा पैसे भरे हुए 100 शेयर्स के,
तो मैं वो क्या करूँगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट करूँगा। मैं बोलूँगा कि इमरान सर अभी मैं आपके पैसे जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करता हूँ। बात समझ रही है? फिर बोलूँ? ठीक है, फिर बोलता हूँ। आई थॉट आपको नहीं समझ रहा है, आपके चेहरे से ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों को नहीं समझता है। देखो, इमरान ने शेयर्स लिए 200, एप्लीकेशन के साथ पैसे भेजने थे 2 रुपये। इमरान ने कितने पैसे भेजे मुझे? 400, राइट। 200 शेयर्स, एक शेयर के लिए 2 रुपये एप्लीकेशन के साथ, तो इमरान ने भेजे मुझे 400 रुपये। अभी मैं इमरान को 200 शेयर्स नहीं दे रहा हूँ, मैं इमरान को क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 100 शेयर्स दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो एडजस्ट करना है, उतने शेयर्स नहीं है मेरे पास। 3000 तो मैंने रिजेक्ट कर दिए फॉर्म, अभी 2000 लोगों को मुझे एडजस्ट करना है। तो इमरान को बोलता हूँ तू मेरा दोस्त है यार, सुन लेना, ऐसा क्या करता है, तो मैं सिर्फ 100 शेयर्स ही दूंगा। तो 100 इंटू 2 कितना होगा? कितना होगा? 200। तो ये जाएगा कैपिटल में, और जो बचे हुआ जो 100 है, 100 इंटू 2 अगेन 200, ये जाएगा अलॉटमेंट में। बोलूंगा कि अलॉटमेंट में मैं एडजस्ट करता हूँ। जब मैं अभी इमरान से अलॉटमेंट के पैसे मांगूंगा तो उसमें से मैं ये 200 कम करूंगा। बात समझ रहे? ओके। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? ओवर सब्सक्रिप्शन। और ऐसी एंट्री हमें बनाना पड़ती है। क्या एंट्री होती है? पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और ओवर सब्सक्रिप्शन अगर है तो क्या एंट्री बनती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। करेक्ट? करेक्ट? करेक्ट, डन। चलो, ओके। अभी हमें नेक्स्ट सीखना है, एज आई टोल्ड यू, इक्विटी शेयर्स कैन बी इशू एट पार, इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम एंड इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए को बोलते हैं तो उसको बोलते हैं एट पार। 10 रुपए का शेयर्स 12 रुपए को बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम एट प्रीमियम। और 10 रुपए के शेयर 8 रुपए को बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इशूड एट डिस्काउंट, राइट। तो पहली केस हम लेंगे इशूड इक्विटी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, इक्विटी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ओके, क्या होता है देखिए, यहां पे ध्यान दीजिए। फेस वैल्यू ऑफ शेयर ₹10। कितना है फेस वैल्यू? उसका 10 रुपीज है, लेकिन कंपनी बोलती है कि हम 10 को नहीं बेचेंगे भाई, हमारा लड़का कितना अच्छा है। फिर हमारे लड़के को गाना आता, खेळता, आमचा पोरगा कोणाच्या आध्यात नाही मध्यात नाही घरातच बसून असतो, म्हणून आम्ही काय करणार? हां, पुढचं मी आता बोलत नाही ते। हां, तो वैसे ही जो शेयर्स है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है तो उसको कितने में बेचना चाहती है कंपनी? 12 रुपये। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी बहुत ही अच्छी है। लोग भी बोलते हैं ठीक है, जो अच्छा होता है उसके लिए लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। ओके, सपोज फेस वैल्यू 10 रुपये है और कंपनी उसको कितने में बेच रही है? 12 रुपये में बेच रही है। तो कंपनी कितना एक्स्ट्रा कमा रही है और कितना एक्स्ट्रा डिमांड कर रही है लोगों से? कंपनी 2 लोगों से एक्स्ट्रा डिमांड कर रही है। अभी मेरे दोस्तों, ये जो 2 रुपये है, ये 2 रुपये को हम नाम देंगे प्रीमियम। क्या नाम देंगे? प्रीमियम। क्या नाम देंगे? प्रीमियम। अब ये जो प्रीमियम है दोस्तों, ये प्रीमियम भी ये बुलाता है। कैसे? जैसे हमने बोला ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो ये प्रीमियम भी क्या करते हैं, कभी कभी अलॉटमेंट के साथ वहाँ पे बुलाते हैं, कभी कभी एप्लीकेशन के साथ भी बुलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम 99% प्रीमियम कहाँ बुलाते हैं? अलॉटमेंट के साथ बुलाते हैं। सपोज हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, देखो सपोज एप्लीकेशन के साथ कंपनी ने 2 रुपये डिमांड किया, अलॉटमेंट के साथ कंपनी ने कितना डिमांड किया? 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 2 रुपये। मतलब कैपिटल के कितने हुए? सिर्फ 3 रुपये, और प्रीमियम कितने हैं? 2 रुपये। ऐसे 5 रुपये यहाँ पे कंपनी ने बुलाया। फर्स्ट कॉल के साथ कंपनी ने कितना बुलाया? 3 रुपये। कितने हुए? 5 और 2 7, 7 और 3 10, और फाइनल कॉल के साथ कितना बुलाया कंपनी ने? 2 रुपये, हो गया 12। बात समझ में आ रही है? issue of share at premium, shares having a face value of ₹10 and company want to sold it, company want to issue it at ₹12। तो ये जो एक्सेस जो 2 रुपये है जिसको हम प्रीमियम नाम दिया है, तो प्रीमियम कहाँ बुलाएंगे? तो ज़्यादातर जो है प्रीमियम
दोस्तों अलॉटमेंट के साथ बुलाया जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, एप्लीकेशन के साथ 2 रुपये बुलाए, अलॉटमेंट के साथ 5 रुपये बुलाए, तो ये जो 2 रुपये है ना यहाँ पे एडजस्ट किए हैं। एक्चुअल कैपिटल के 3 रुपये, प्रीमियम के 2 रुपये, फर्स्ट कॉल के 3 और फाइनल कॉल के 2, कुल मिला कितने हुए 12 रुपये। 5 7 5 5 दान 2 12। क्लियर? ओके, एंट्री बनाएंगे। चलो, और सब्सक्रिप्शन अभी प्रीमियम की एंट्री, राइट। क्या होती है प्रीमियम की एंट्री? यहाँ पे मैं लिखता हूं फॉर शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। सपोज प्रीमियम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के साथ अगर बुलाया है तो क्या एंट्री बनेगी? देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, टू शेयर प्रीमियम। इस तरह से एंट्री बनेगी, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट कंपनी ओपन करता है, कंपनी ओपन करती है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये पैसा कैपिटल में नहीं जाता है, जो एक्सेस अमाउंट आता है ना प्रीमियम का, कैपिटल में नहीं जाता है, वो कहा जाता है सेपरेट सिक्योरिटीज प्रीमियम में अकाउंट में जाता है। तो इसके लिए सेपरेट अकाउंट हमने ओपन किया है यहाँ पे, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। और फिर हम अगेन लिखेंगे नरेशन, बीइंग allotment money due on dash, suppose for example 1000 equity shares at the rate of ₹5 with including premium ₹2। ऐसा हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो दोस्तों आज हम सीखे हैं जर्नल एंट्री, हाउ टू पास जर्नल एंट्री। सपोज इशू ऑफ शेयर एट पार, आफ्टर दैट वी हैव सीन ओवर सब्सक्रिप्शन, उसमें कैसे करते हैं, और देन वी सी इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। भी नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। फिर उसको कोई बंदा पैसे नहीं भरता है, इमरान के साथ कल्याण सर थे तो उन्होंने पैसे भरे नहीं, तो फिर उनके शेयर्स हमें फॉरफिट करने पड़ेंगे, और फॉरफिट करने के बाद री इशू करते हैं तो उनकी भी जर्नल एंट्री हमें बनानी पड़ेगी। मुझे पता है आप लोगों को मेरा हैंड राइटिंग समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको PDF भेज दूंगा आपके गूगल क्लासरूम में, तो आपको सब एंट्री वहाँ से कॉपी करना है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।